ٹھیک ہے. یہ داستان تو 200 سال سے چل رہی ہے، آج نئے نہیں ہے. اب ہمارے راستے یہ معاملات میں جو بھی بات ہے جلدی کر لیجیے، سب کا وقت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایسا ہے مسئلہ. بڑے بڑے مناظرے کرے سے مرکز کا بھی آپ نکال کے دیکھیں یوٹیوب پہ، آئے دن ہم لوگ کے چلتے رہتے. حال ہی میں تو کون تھا وہ شیخ فصیح الدین حافظ اللہ. ہاں، تو ان سے بڑا تھا یہاں پہ، پوری تیاریاں جی ہاں، کلیم وزیر صاحب سے تھا. آئے نہیں کرے نہیں، وہ لوگ یہیں سے کلیم صاحب یہیں انتظار میں تھے. تو بڑے بڑے لوگ بھی آئے نہیں عبدالغفار نام ہے. بڑے بڑے لوگ بھی آئے نہیں، کبھی آتے بھی نہیں، کبھی ہوتا بھی نہیں. وہ لوگ سے کوئی ایسا کوئی ان لوگوں کا طریقہ بھی نہیں ہے. مناظروں سے کوئی حل بھی نہیں نکلتا. عوام نکال لیتی نہیں نکال سکتے. عوام میں اگر اتنی صلاحیت رہتی، جب ہم لوگوں میں اگر اتنی صلاحیت رہتی تو پھر ایسے تمام مسائل پیدا نہ ہوتے. آپ عوام ہیں؟ عوام ہے، عالم نہیں ہوں. عام آدمی جی ایک موقع پہ آ گیا. مسائل سمجھ رہے ہیں، سمجھ گیا کون سے سمجھنے کے یہ ایک دوسرے سے سمجھنا. اصل کیا ہے، تبادلہ خیال کرے تو ہمیں کچھ چیز کی معلومات دیتی. آپ عوام بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کچھ ہوتا نہیں، آپ فیصلہ بھی دے رہے کیونکہ آپ سمجھ میں نہیں آتا نا بھائی. ہم لوگ اپنی بات بولتے ہیں، دوسرے والے اپنی بات بولتے ہیں. میں عوام جو دیکھ لیتی ہے نا پھر سمجھ جاتی ہے. ایسا کیا ہے، دیکھیے اے سائڈ بی سائڈ والے اپنے لوگ خوش ہو رہتے ہیں، ارے ہمارے عالم بہترین بات بولے. اے سائڈ والے اپنے لوگ خوش ہو رہتے ہیں، ہمارے عالم صحیح بات بولے. یہ بات ہوتی ہے معلومات کرنا چاہتے ہیں. ایسے کئی معاملے بھی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بہت سارے دلائل. میں ہمارے یہ حافظ حسن صاحب کا ہے ساتھی ہے، ملاقات ہوتے رہتی. میں یہاں بارگاہ سلالہ میں رہتا ہوں، سعید کالونی میں. ایک عام آدمی ہوں میں. تو خیر وہ کچھ جو چیزیں تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہم بھی. سابقہ میں بھی بریلوی تھا، یاقوت پورے میں رہتا تھا میں اپنے املی بند کے اندر، جہاں پر دارالعلوم غوث اعظم ہے، دارالعلوم احمد رضا جو ہے نا جی، وہاں پر ہے اپنے محبوب صاحب چلاتے تھے. محبوب جی ہاں، وہاں پر بیٹھا تھا. جب مفتی رضا اللہ اشرفی مصباحی بھی وہاں پر تھے، اور خالد صاحب بھی صاحب بھی تھے، انہوں دارالفتہ پہ تھے. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا میں، اور بھی وہاں پر کیونکہ وہاں مقامی ہم لوگ تو وہاں پر مدرسے میں صبح شام وہاں پر ہی زیادہ تر وقت گزرتا تھا. پھر اس کے بعد یہاں سنی سینٹر پہ بھی بیٹھنے رضا الق صاحب بھی وہاں بیٹھے. قمر اشرفی جو ڈالے تھے نا سنی سینٹر مغل پورے میں، وہاں پر بھی بیٹھے. پھر رضا الق اشرفی صاحب وہاں سے ہٹ جانے کے بعد تو مفتی نیر اعظم اشرفی آئے انہوں بھی تھے. تو برحال یعنی صحبت سنگت ہمیشہ زیادہ رہی. اہل علم میں زیادہ بیٹھے سمجھے، ان سے بھی مکتب فکر کے رہے، ان لوگوں سے رابطے میں رہے. یعنی تو دین جو ہمارے لیے وہ ضروری ہے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے. غرض و غایت وہ ہے. اس اعتبار سے اہل علم کی صحبت سنگت ہمیشہ رہی. کوئی باقاعدہ کوئی مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں ہوں، نہ میں کوئی حافظ ہوں. الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب ہے علم. تو یہاں پر بھی سلفی ہو گئے. جی الحمدللہ اللہ کی مدد سے. اس کی وجوہات جیسا کہ پیش آئے آپ کے سامنے، مختلف مسائل آئے جس کے متعلق ہے سو اہل علم سے رابطہ کیے، تبادلہ خیال کیے، جو عقائد کے بھی سامنے میں سب سے ملتے ہوئے ان کے لیے ان کی بات رکھے. ان کی سوچ، ان کے تھاٹ، ان کی قسمت، ان کے جو مقدمہ کو ملنا تھا جو بس میری طرف میرے پر غالب آ گئے. انہوں جتنی محنت کر سکتے تھے اپنے دین کے لیے اتنی کر لیا، انہوں رہ گئے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس پہ دین وہی کرنا ہے بول کے آ رہے. وہ تو میں بھی اس لیے چل لیتے کیونکہ نہیں تو ویسا رہتا تو میں اپنی جگہ رہتا. اور مقصد کیا ہے، بحث و مباحثہ وہ نہیں ہے، بس معلومات حاصل کرنا ہے دین کی، جس سے دنیا اور آخرت آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جزائے خیر دے کہ آپ لوگ وقت نکالے کہ آئے لوگ بول کے سمجھانے کے لیے، شبہ و شبہات دور کرنے کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. تو بس اسی کے متعلق تو ہمارے بھائی صاحب نے تو بتایا حافظ صاحب کہ کسی سے گفتگو ہوئی تھی بولے نا آپ سے. ہاں گفتگو ہوئی. یہ ہمارے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ. نہیں میرے ایک چھوٹے بھائی بھی یہاں پر پڑھا کرتے تھے. جب مجھے بولیے نبی صاحب باحیات تھے، عالمیت کر رہے تھے، شمروز بیگ بول کے ایرانی گلی میں گھر ہے. ہاں شمروز وہ اپنے سی سی ٹی کیمروں کا کر رہے ہیں. دیکھیے سجاد ہے، ریئل نیم سجاد ہے، مرزا سجاد علی بیگ ہے، عرف میں شمروز ہے. دبلے سر کے تھے. ہاں انہوں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے. اب سی سی ٹی اپنے کیمرہ کا اس کا کرنے میں باہر بھی آ گیا. سب کے چھوٹے بھائی ہیں.
और भी भाई हैं। तो वही बताया कि तो खबर इसके नहीं, मैं वालिद साहब का नहीं, मैं वालिद साहब का नहीं, जमाने से हटके हूँ। खैर छोड़िए। तो वो खबर के मुताबिक बात हुई हाफिज थी। साहब आए थे अभी, जी हाँ, हाफिज साहब आने का हाफिज साहब से बात हुई, खबर के ऊपर सवाल करे हुआ थे। जी हाँ, वही पूछने के तो मुताबिक उन्होंने सवाल ये करे कि सरकार हुक्म दी मौला अली को, सरकार हजरत मौला अली को कि खबर तोड़ दो। जी जी तो ठीक है तोड़ दो बोले। जी तो मैं उनसे ये सवाल किया, क्या मुसलमान की खबर तोड़ने का हुक्म दिए क्या आपका पूछा? जी हाँ, अपने मुसन्नफ मैं बात कर रहा हूँ, जी। बात हुई तो आपको सुना रहा हूँ, आपसे कुछ जानना नहीं चाह रहा हूँ इस मामले में। जी जी जो हमारी बात हुई जी जी तो मौला अली सरकार जो मज़ार तोड़े क्या वो मुसलमानों की तोड़े का जी उसकी नजर जी अगर उन्होंने मौला अली सरकार तोड़े बोल के अगर आप मान रहे हैं तो सरकार के दौर में बन कैसा नहीं मुसलमानों के मज़ार जो आका के दौर में ऊंची ऊंची बन कैसा नहीं। फिर उसके ऊपर हदीस में है कि तस्वीर को भी तोड़ देने का हुक्म है। सही है। तो तस्वीर के साथ मुसलमान की खबर कैसे साबित है, ये पहला सवाल था जी इसका जवाब उनको देने का। फिर उन्होंने बात दूसरी करी कि फूल पे आ गए, जी तो फूल के ऊपर बुखारी शरीफ की हदीस सुनाते सुनाते फूल का हवाला दिए। जी जी ये दो बातें चल रही थी, फिर बीच में इधर उधर ये तो चीजें हैं भाई, ये झगड़ा नहीं आपसे नहीं ना फूल का है हमारा, समझ रहे, खाली फूल का नहीं है ना खबर तोड़ने का है। 4,500 से ज्यादा मसले मसाइल आपके हमारे आपके सर नहीं, सुनिए आप सुनिए बात सुनिए आपका एक आध झगड़ा नहीं है मकतबे अहले हदीस से अहले सुन्नत का, एक आध झगड़ा नहीं है, 10 बातों का झगड़ा नहीं है। आपको हमारे इमामे से परेशानी है, आपको हमारी टोपी से परेशानी है, हमारी दाढ़ी से परेशानी है, हमारी दाढ़ी आपकी दाढ़ी में फर्क है, हमारे पैजामे में आपके टखनों के पैजामे में फर्क है, हमारे जिब्बे में आपके जिब्बे में फर्क है, हमारे इमामे में तुम्हारे आपकी टोपी पे जाली पे बगैर टोपी के ना, हर चीज में सुन्नी यहाँ हर बनता हम यहाँ, हर चीज में मसले मसाइल में फर्क। मसाइल की बात नहीं है, अकायद से लेके हर पूरी मसले में झगड़े। कोई हमारे राब्ते एक 10 चीजें भी ऐसी नहीं है कि जो हमारी मैच होती है आप लोग से, क्यों नहीं हो सकती? नहीं होती थी। क्यों? आपके अकायद अलग है, बड़ी आपके मामला अकायद की बात, ये जो नजदी हुकूमत आई है ना 200 साल से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उनसे ही आप लोग का ताल्लुक नहीं, आपके इल्म में कमी इजाफा करिए नहीं है। जो भी मामला अहले सुन्नत के 1400 साल से जो चलने के आए उसके बरखिलाफ हमको करना है। जी ये नजदी हुकूमत का मेन मिशन नहीं, वैसा बोले तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमुल्लाह थे और उन्होंने तो इनसे माखबल आए थे अहमद रजा से, जनाब अहमद रजा साहब से माखबल गए उनको, उनसे माखबल गए, ये तो फिर बाद वाले हो गए ना भाई, तो दोनों में फर्क हो गया। मसला अकीदे का ही है ना, तो अकीदे में ही मैं बता रहा हूँ। पहले खबरों के मुतालिक जो सवाल हुई थी उसके मुतालिक ही एक जो बात बोली आप मुसलमानों की बोल गए, खैर सियाक व सवाल जो हदीस का है सही मुस्लिम नहीं मेरी बात तक आप नहीं पहुंचे, मैं माफी चाहता हूँ जी, पहुंचा बात दीजिए तक नहीं पहुंचे। जी। झगड़ा हमारा खाली खबर वाला नहीं है, फूल वाला नहीं है, बरों में अकीदे का है, 4,000 से ज्यादा मसले मसाइल आपके हमारे मसले का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मसाइल की बिना पे पहले अकीदा है सर, अकायद भी उसमें शामिल है हमारे। तो अकायद असल है, बुनियादी चीज अकायद तो है। एक बात बताइए, जी। अब बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हाँ जी जी आप कब्रों की बात कह रहे हैं, तो कब्र बनाने न बनाने का मसला ये अकीदे से मुतालिक है, मसले से मुतालिक ये तो मसले से है, मगर वो जाए के बाद ये तो अकीदे के ऊपर पहुंच जाएगी, कैसे? जो खैर आगे चलिए तो बात होगी मतलब कैसे इंशाल्लाह भाई? मौका मिल होता ही अकायद से जरा तोड़ने के ऊपर जो बात है ना, तोड़ने से है तो वहां तक अपने रास्ता तय हो जा रहा, अकीदे तक तय हो जा रहा अकीदा रास्ता, मतलब कैसे? क्योंकि औलिया अल्लाह कराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन की मज़ारात को है सो जो बना के तखसीस करके है तो फिर उसके ऊपर गुंबद वगैरह बना के फिर वहां पर जो अमाल किए जा रहे हैं अवाम के, उलमा नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बात सुनिए, उलमा नहीं कर रहे वो काम, अहले इल्म नहीं कर रहे हैं, अवाम की बात चल रही, तो अकीदे तक पहुंच जा रही है। फिर वो बात दूसरी हो गई, दूसरी नहीं हो गई। नहीं पूरी बात सुन लीजिए, इख्तिलाफ अकीदे में है। जितना प्रोसेस आपने बताया कब्र से लेकर के वहां सब कुछ जी हाँ, पहुंच रही बात। होने तक, जी हाँ, उसमें कौन सी बातें मसले से मुताबिक है? पहली वाली मसले से मुतालिक है, तामीर करना भी मसले के मुतालिक है, फिर गुम्बद बनाना भी मसले के मुतालिक है। बात पर वहां पर जो आगे चलकर जो अवाम वहां पर जो कर रही है अकीदतन जो कर रही है, जो भी वहां पर अमाल पेश आ रहे हैं आपके ऊपर मख्फी नहीं है। देखिए नानी को ननियानी से नहीं सुना करते, आपके ऊपर कोई मख्फी नहीं है, जब बोलेंगे तब तो अच्छी बात है। सवाल में जब जिक्र होगा तब तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए जवाब सवाल की बात नहीं है, बात मैं इसलिए की था ये बोल रहा बुनियादी जो मसला है, बुनियादी जो अकायद का मसला है सर, असल अकीदा है। खबर के मुताबिक आपने पूरी कहानी बता दी है, थोड़ा सुनिए।
اس میں عقیدے کی بات کرنا یا مسئلے کی بات کرنا؟ عقیدے کی بات. عقیدے کی. جی عقیدے کی بات وہی نا کہ وہاں عوام کیا کرتی ہے. نہیں, یہ تو سیکنڈری ہے. سیکنڈری. پھر فرسٹری کیا ہے؟ اصل جو عقیدہ ہے, جو ہم میں جو اختلاف ہے بتا رہے ہیں, میں اس عقیدے کے متعلق کس مسئلے میں اختلاف ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا ڈیفینیشن دو پہلے آپ نے. نہیں بھائی, تو عقیدے کا ڈیفینیشن میں نے بات بتا. عقیدے کے متعلق پہلے جو 6 چیزوں پر اپنے کو ایمان لانا ہے. ہاں بھائی, 6 چیزوں پر تو ایمان لگانے, جو 6 چیزوں پہ ایمان لگانے کا ایمان میں بتا رہا ہوں. ایمان جو 6 چیزوں پہ لانا ہے, جو حدیث جبرائیل معروف ہے. پہلے اسلام کے متعلق پوچھے جی, اس کے اندر, پھر اس کے بعد ایمان کیا ہے, تو 6 چیزوں کے اوپر بتائے. اس کے متعلق جو ہمارے پاس جو ہم چوتھی چیز پہ جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے, اس کے اسی مسئلے میں, کیونکہ میں بتایا ہوں, میرا ماضی تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے تعارف پیش کر دیا, کیونکہ میں پوری وقفیت رکھتا ہوں, انجان نہیں ہوں. جیسا یہ حضرات انجان ہے, میں ویسا انجان نہیں ہوں. میں الحمدللہ 43 سال عمر ہے میرے, 7 بچوں کا والد ہوں میں, تو میں انجان نہیں ہوں بولنے کا مقصد. آپ میرے کو بولنا ہے, میں آپ کو, اور میں کیا ہے, آپ اہل علم کو سکھانے کی بات نہیں آیا. کچھ جو ہمارے میں تو میں وہی بتا دوں, تو عقیدے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو آپ میں ہم میں جو اصل جو اختلاف ہے, تو بنیادی اختلاف ہے کیا؟ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے خبر سے عقیدہ جڑا ہوا کیا ہے, اس پہ ٹاپک آپ کو میں وہاں تک لانے, خبر پہ عقیدہ کیا ہے وہ بولیے. آپ نے عقیدہ بولے, آپ خبر عقیدہ. میں بولا وہاں تک پہنچتے ہیں جو حضرات عمل کرتے ہیں, وہاں نظر و جو نیاز مانتے ہیں, حتیٰ کہ تو آپ, میں اس لیے بولا, میں نانی کو نہیں ڈال کے کس سے نہیں سنا کرتے. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کی درگاہ کو چلو اپن, یا یوسف بابا کی درگاہ, کیونکہ میں بھی جاتا تھا, مجھے معلوم ہے, میں بھی دیکھا, میں بھی جو کیا. آپ بہت زیادہ کہانیاں بتا رہے ہیں. جی ہاں, تو کہانیوں کی بات نہیں چل رہی ہے. آپ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں, صرف عقیدے کی بات. وہاں کیا خرابی کیا خرابی؟ آپ خبروں پہ آگے رکے, میں آپ کو بنیادی عقیدے کی آ جا رہا ہوں. میں تو بات, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آ رہا ہوں. آپ تو یہاں پر آگے بھی خبروں پہ, اولیاء اللہ کے بعد میں ہی بات چلی تھی خبر کے مطابق. خبر کی بات کلیئر کر کے آپ سرکار کو نہیں, تو بس خبر کے مطابق جتنی بات تھی, آپ نے جو پوچھا کہ بھائی سے کہ وہ مسلمانوں کی خبریں توڑنے کا کہاں پر تھا, تو میں وہی بتا رہا تھا. مصنف عبد الرزاق میں, کتاب الجنائز میں, امام عبد الرزاق رحم اللہ اپنی سند سے روایت لے کے آئے ہیں. اس کے اندر یہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر الفاظ کے اضافہ ہے, یعنی مسلمین بلکہ الفاظ. ٹھیک ہے حضرت, مصنف عبد الرزاق لائیں گے, حوالہ بتائیں. جی ہاں انشاءاللہ, ابھی میں نکال کے بتا. ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس نہیں, آپ ہے تو لکھائیے. لائبریری سے مصنف وہ کتاب بتائیں گے آپ. جی ہاں بے شک, وہی جی سبحان اللہ. اس کے بعد ہی دوسری بات ہوگی. جی ہاں صحیح بات, نام نکلے گا اس میں, مسلم کی خبر کا نکلے گا. جی ہاں. ایسے کچھ اعتراضات ہو تو پہلے سے جی اچھا ہے, تو کتابیں ہم شاید خرید رکھ لیتے. میں الحمدللہ ہے کتابیں آپ لوگوں کے پاس, کیونکہ مرکز ہے یہ, ہاں عموماً رہتی ہیں. میں آپ کو معلوم نہیں ہے, میری والدہ ہاسپٹل گلوکوز یہاں بیٹھا ہوں جلد سے. نہیں یہ اس لیے اگر نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آج ہی بول کے نہیں, اگر آپ موقع دیں تو کر لیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ اپنی سہولت سے لاکھوں روپے کا انتظام کر کے پورے مقصد کیا ہے, تکلیف پہنچانا نہیں ہے کسی کو بھی. مقصد باتیں ہیں نا ساری چیزیں, اس کا پہلے سمجھ لیجیے. میں نے ان سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ آپ ڈیبیٹ کرنے ہیں یا سمجھنے کے لیے. آپ سن نہیں رہے نا, تو آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب تک دیکھ لیجیے, آپ بھی ہیں, آپ بھی ساتھ میں نا. بھائی جان نے ابھی تک بات سننے کا اپنا مادہ نہیں دکھایا ہے, وہ صرف سنانے کے لیے آئے ہے نا. ابھی پھر بول رہے ہیں آپ, چیز یہی ہے, حضرت بیان کر رہے ہیں, بات آپ کی چل رہی ہے, حضرت بیان کر رہے ہیں, زبان آپ کی چل رہی ہے, تو آپ سنیں گے. یہی 200 سالوں سے ہی ہوتے آیا ہے. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جوابوں میں, ایسا نہیں کہ جو آپ نے ابھی پیش کیا اس کا جواب نہیں ہے, یا آپ جن علماء کے پاس بیٹھے انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا ہوگا. ہے نا, جن بھی علماء کے پاس بیٹھے سارا جواب آپ کو ملا ہوگا. کتابیں بھری پڑی ہیں, آپ اگر سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ مثال بنا کر کے بیٹھیے. صرف آپ اپنا سوال پیش کریے, اس کا جواب دیجیے. بھائی نے کیا, ہم نے کروایا. جی وہ مذاہب کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے,
ایک چیز پہ وہ خاموش رہے, دوسری چیز پھر خاموش ہو گئے جب جواب ملا. تو وہی کریے آپ کہ آپ سنیے اور اس کو مانیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ خاموش رہیے, اور اگر حق قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے نہیں آئے تو پھر اس بات کا اور بحث کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کے جن علماء کو جو آپ مانتے ہیں, بھلے محمد بن عبد الوہاب کو نہیں مانتے ہوں گے, حالانکہ ابھی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ بولا ہے, بے شک بولا, ان کو نہیں مانتے ہوں گے, لیکن ابھی اس زمانے میں جو موجود ہیں ان کو مانتے ہوں گے. تو انہوں نے جو بھی اعتراض کیا, ان کے اعتراض کے جواب میں کتابیں موجود ہیں. ہمارے عقائد کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں ہم نے اس کی صراحت قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کی دلیلیں لکھ کر کے کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آپ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارے, ورنہ آپ کو جن علماء کی باتیں کر رہے ہیں, مولانا محبوب عالم صاحب کی ولایت, ان کی یہاں کتابیں ساری موجود ہیں. کتابوں سے آپ نے کبھی ناطے ہی نہیں ہوا. ادھر ادھر ڈوبتا کون ہے جو خالی ہوتا ہے. اگر کتابوں سے آپ کا واسطہ رہا ہوتا تو یہ ساری چیزوں کا جواب موجود ہے, سب لکھا جا چکا ہے, ایک ایک چیز کا جواب دیا جا چکا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں سب موجود ہے. جی بھائی, کمی ہے لوگوں کی کہ وہ ان تک رسائی نہیں ہے. رسائی ہے, بالکل ہے, شوق نہیں ہے. جی, اگر رفع یدین کی حدیث ان کو دکھا دی گئی, چلے رفع یدین کرنے. اہل سنت میں ان کو بتا دیا گیا کہ رفع یدین کے بجائے عدم رفع یدین کی حدیث بھی ہے, تو اگلے دن پھر ادھر آ گئے. یہ لوگوں کا مزاج ہے, ان کے اپنا کسی ایک چیز پہ ٹک نہیں پاتے ہیں, اور فخر سے بتاتے کہ ہم تو پہلے غیر مقلد تھے, آج مقلد ہو گئے, ہم کل مقلد تھے, آج غیر مقلد ہو گئے. صرف کمی ہے انسان کی اپنی, ورنہ اگر قوت ارادی ہوتی, طاقت ہوتی, تو اپنی چیز جس پہ ہیں اس کے ثبوت میں چیزیں تلاشتے اور مل جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھنے آئے ہیں تو آپ کو صبر رکھ کر کے وہ سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. جی, بیجا ادھر ادھر کی کہانی اور قصے سے کام نہیں چلے گا. کوئی قصہ کہانی میں سنا ہے, میں اپنا تعارف اپنے آپ کو متعارف کرایا, میں کوئی نہیں بات انہوں نے گفتگو بات کی, اور برائے مہربانی کوئی پانی منگوا سکتے ہیں, کسی نے کوئی تعارف نہیں کرا, پانی تکلیف ہے. جزاک اللہ. تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے جتنی بات ہے سمجھنے کے لیے, جی سمجھنے کے لیے باتیں کریے, جی انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی میں نے وہی تو اس لیے میں بتایا نا, وہ روایت کے مطابق بتا دیا, انشاءاللہ آگے بھی سمجھیں گے. ایسا نہیں, معذرت یہ نہیں کہ اگر میری بات سے کہ میں بحث کرنے کا اگر ویسا دکھ رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں, بحث نہیں. ہمارے علم میں جو چیز ہے آپ کے سامنے رکھ دیں گے, بولے کہ ہمارے سے مبالغہ ہو رہا ہے. ایک ہوتا مناظرے کے طور طریقے اصول, جی وہ الگ ہے, ورنہ ویسا نہیں ہے. اور ہم بات کرنے آ رہے ہیں اور کنڈیشن مناظرے کا ایک سوال ختم نہیں ہو رہا, دوسرا اسٹارٹ کر لے رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا, درست نہیں چیز کے. ایک مکمل ہو جائے گا, دوسرا سوال کریے. پوچھا نہیں آپ نے کہاں دکھایا, صرف کتاب کا حوالہ. ہاں, کتاب وہ دے دیں گے, کتاب وہ خود جلد نمبر 3 میں دے دیں گے, دیکھیں گے وہ عربی متن والی یا کچھ جو بھی ہے, جو بھی عربی والی بھی دے دو بس. اور یہ جتنی کتابیں نا جس میں اضافہ ہے جی ان چیزوں کا, وہی سے چھپی ہوئی ہیں. جی, وہ سمجھائیں گے نا, وہ چیز بتائیں, وہ بین سطور لگا کر کے وہ چیزیں واضح کی گئی ہیں. اپنا ایک چیز بتا دیں گے, اب ماننا نہیں. اب حدیث سے مصنف ابن عبد الرزاق کی بات ہے, اس میں حدیث نور بھی موجود ہے, جی, اور جو وہاں سے چھپتی ہے سعودیہ سے سب نکال دی تخفیف ہو گئی ہے اس کی, حدیث نور کو نکال دیا گیا. مصنف عبد الرزاق میں حدیث نور ہے, نکال دی گئی نا آپ کے کوئی بھی نہ نکالے. یہ سراب سری بہتان ہے, خیر اللہ محفوظ رکھے. نہیں تو وہی چونکہ ایک نہیں تین محققین کے الگ الگ مطبوعہ نسخے ہیں, کسی میں بھی وہ نہیں ہے حدیث نور. البتہ جو دبئی سے کچھ عرصہ پہلے سو ماقبل سو جو ایک جزء مفقود بولے کے جو شائع نشر کرے تھے, اس کے اندر ہے وہ بھی, اس سے پہلے نہیں تھا آپ جو بتا رہے ہیں. اور رہی بات دوسری حدیث نور کی, تو بڑی پیاری بات, یہ بات سمجھ میں آ گئی. جتنے بھی محدثین نے کتاب الاوائل لکھی ہے سب سے پہلے جو چیز کے پر, کسی نے بھی حدیث نور کو ذکر نہیں کیا, کسی ایک محدث نے بھی. اس سے کیا لازم ہے,
हाँ, आप भी बोलिए क्या लाजिम है आज, सुभान अल्लाह। बहुत सारी हदीसें हैं इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं आपको एक बात बोला, मैं जिस उसूल पे जिस बुनियाद पे अज्जा जैसा जुज़े रफ़ुल-यदैन लिखा गया, जैसा जुज़े फातिहा खल्फ़ इमाम लिखा गया, इसी तरह से इंतखाब करके किताब लिखी गई। किताबुल अवाइल इमाम तबरानी की है, इमाम अस्करी की है, इमाम इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह की, अबू बकर इब्न अबी आसिम। नाम गिनाने का कोई फायदा नहीं। नहीं कि मुसन्निफीन के नाम बता रहा हूं मैं, जिन्होंने किताबुल अवाइल लिखी है। तो किसी एक ने भी ये रिवायत नहीं लिखाई, बाद में मन घड़ गढ़ी गई सो रिवायत। अल्हम्दुलिल्लाह गढ़ी गई सो है, अहले हदीस की वजाहत की है। खैर ये क्या है, इल्जामात से नहीं चलता। दलील है कि आप किताबुल अवाइल में नहीं जिक्र किया तो लिहाजा हदीस। हाँ, सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी दलील है जलालुद्दीन सूती का कहती बात। अगर ये होती तो सबसे पहले मुहद्दिसीन नकल करते उसको। क्योंकि एक से छुट्टी, दो से छुट्टी, तीन से छुट्टी, चार से छुट्टी। अगर इसमें नहीं है तो हदीस नहीं है, कहाँ किसमें? अगर इस मैं आपको बोला जिस फन में किताब लिखी गई, जुज़े रफ़ुल-यदैन की तमसील, मिसाल दी आपको। नहीं प्रयास नहीं, जिस एक उसूल के ऊपर, जैसा कि देखिए बात अलग होगी। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में अल्फाज देखिए इंशाअल्लाह, क्योंकि देखिए अभी किताब आने से पहले ये जो जहन साजी जो की जा रही है ना, ये कोई दुरुस्त नहीं है। देखो ये अल्लाह के पास जवाब देना होगा क़यामत के दिन, बोतान तराशी से काम नहीं होगा। आपको दलील पेश करनी होगी, पूरे तमाम मखतूतात पेश करनी होगी। ये अल्फाज का इजाफा इसमें किया गया और ये इन लोगों ने तबाह किया, तो इन लोगों ने ये इजाफी की वजह बात इल्जाम तराशी से होती। आप भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, फिर आप जिसके ऊपर भी कर रहे हैं, ममलकत सऊदी अरबिया के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ममलकत सऊदी अरबिया का सबसे वादे नशर ही नहीं किताब। आपने मुहद्दिसीन पे इल्जाम लगा दिया कि वो हदीस गढ़ी हुई है। कौन करे, कौन लेके आए? खामोश होकर के सुन लीजिए मेरी बात। सुनाइए। आप हमारे ऊपर भी इल्जाम की बात लगा रही है, तोहमत लगा आप लगाए, तोहमत को हकीकत बोल रहा हूँ, तो आप साबित करिए। आप तो सब ये साबित ही से बता रहा हूँ मैं, कितने दिन उसके साथ में साबित हो जाती है जी। आपके बोलने से हम कह रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं है, मान लेंगे जी। हम कह रहे हैं आप मुसलमान नहीं, मान लेंगे। कौन लेते हैं आप मान लेते कि आप तो आप बोलते तो आप अपनी जगह आते हैं, मैं किस हदीस भी सेम जो बोल रहे हैं आप वैसे ही हो। ये हमारी तहकीक है, आप मान लेंगे। आप पहले ये बताना पड़ता कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में से ममलकत सऊदी अरेबिया से जो नजरिया नशर करे, उन लोगों ने ये रिवायत को हदफ कर दिया। बोलिए आप पेश करना दलील, पहले पेश करना, पूरे मखतूतात से पेश करना, पूरे मखतूतात से। आप खाली दुबई से एक जने है तो खाली जुज़े मखूद बोल के एक अलमारी में थी, निकाल लिए, कर दिए, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मखतूते की जो पेपर के ऊपर भी हत्ता के खताब जो है सो उसके ऊपर जो जिस तरीके से जो लिखा गया, किस सदी में, किस सन हिजरी का है, किस हिजरी का है, उसी के ऊपर उसके ऊपर भी तहकीक करके उलमा पाकिस्तान ही में है सो इसकी है तो जब जुज़े मखूद आया जश्न मनाए, नशर करे, फिर उसके खिलाफ भी रहे। तो दोनों पढ़े, फरीक़ैन के दोनों भी चीजें एक जगह नहीं। अभी आप खाली मुझसे वाबस्ता नहीं है, वाकिफ नहीं है, आप महबूब आलम साहब से या किसी से भी फोन करके पूछ सकते हैं। अफरोज आए हैं याकूत परियाले, बोले तो ना बताते कौन है बोलेंगे, जब वक्फियत होती आप उससे क्या मतलब है ना, वक्फियत होती। अच्छा, उससे किताबों की आपने तोहमत की बात कह दी तो मान लिया जाए। कौन सी? मैं तो साबित कर दिया, 3 मतबूआ नुस्खे बोला मैं। साबित कैसे हो गया? 3 मतबूआ नुस्खे किसी एक ने भी है तो इसको पेश नहीं किया, तो उसको हदीस दारुल तासीर से गढ़ी हदीस मान लेंगे। कौन सी से आपके उस कहने से जी वो गढ़ी हुई हदीस है। दूसरी खराइन भी दिया मैं आपको, ये खरीना भी दिया आपको, मैं खरीना भी पेश किया कि किताबुल अवाइल में किसी एक मुहद्दिस ने उस रिवायत को दर्ज नहीं किया। ये चुसूल है, खराइन भी देखेंगे ना। पहली बार लिखा है 3 मतबूआ नुस्खे है। देखिए पहली बात क्या दलील है? आपने जो बताया किसी मुहद्दिस ने, किसी आलिम ने ये दलील बयान की है कहीं किताब में? आप बताओ 500 हिजरी के अंदर के पहले बताइए। आपको 900 दलील दे रहे हैं आप, मौसू हदीस की जो मौजूद बनगढ़ वज़ा करें सो हदीस की। हाँ, तो उसकी जो दलील आप दे रहे हैं, उसकी दलील दे रहे हैं ना। दलील क्या दे रहे हैं? क्या बोलिए? अभी जो पहले सबसे पहले देखिए एक बात हुई, सुभान अल्लाह। आगाज कैसा हुआ गुफ्तगू का? हमने कहा मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, तो जनाब ने कहा कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में तो नूर वाली भी हदीस है। वो मुझसे कह रहे थे, आप छोड़िए बात। नहीं, कोई भी यहाँ पर मजलिस में भी आप भी ऐसा उनकी तारीफ करें, आप भी नहीं वो नहीं, ये नहीं बात सुनिए। हाँ, क्या सुनाना चाह रहे हैं? आपने कहा ना कि इसमें 3 मतबूए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों में नहीं है, तीनों में और किताबुल अवाइल में भी नहीं है जी, और खरीना इन सब में ना होना किसी हदीस के मौजूद होने के लिए काफी है क्या?
इनमें अगर कोई हदीस ना हो तो हदीस मौजू होती है। इनमें ना होने की उसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बात उसूल की बात, उसूली बात है ना। हाँ, क्या? पहले बोले मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में से निकाल दिए वो नहीं, वो तो बाद में आई बात ना, वो बाद में आई ना बात, वो बात से बात आगे बढ़ी। बात हमारी बात से आपकी बात का क्या ताल्लुक है? मेरे ताल्लुक है वहां पर, आपका ताल्लुक है, दोनों का भी, दोनों के एक ही कलमा पड़े तो दोनों का ताल्लुक है यहाँ पर, आपने किसी कहा का अलग नहीं है हदीस ताल्लुक, मौजू है ना। क्योंकि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की बात मैंने की, मैंने की तो आपने जनाब ने कहा, हदीस इधर सुनो मौजू पहले, कहा। मेरी बात सुनो। आगे ना बढ़ना, नहीं आगे बढ़ना ही नहीं, नूर को मौजू कहा। बात पहले भी चलिए। नहीं जनाब। बात क्या होगी? हदीस से नूर को मौजू कहा, मौजू मन गढ़त है, अब फिर बोलो, मन गढ़त है। अल्लाह की कसम मौजू मन गढ़त है, कसम खा के बोलो। उसकी दलील उसकी आपके क्या पास दलील? हम दलील है, क्योंकि हाँ, इसी पर क्योंकि बात- सबसे पहली अगर दलील, उस हदीस का सबूत मिला तो आप क्योंकि क्या करेंगे? वो हदीस तौबा को पेश करेंगे? करना, माए सनद पूरी पेश करना, हाँ, माए और पूरे सनद मखतूता जैसा बोले मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक का हिस्सा होना होना, क्यों? तीन मतबूआ मुस्लिम के मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के ऊपर ही बात हुई। में अगर वो हदीस ना हो तो हदीस नहीं है। कौन सी बात? अब्दुल रज़्ज़ाक की बात चल रही थी यहाँ पर। नहीं, तो आपने- आप आप भाग गया, पलट रहे हो। आप भाग गया, नहीं आप बात कर रहे हो। पलट गया, क्या ये आप कैसे पलट गए। अरे आप पलट रहे हैं, क्योंकि मैं आप- पलटा, आप- मैं आप- पलटा ही नहीं। आप पलट रहे हैं। फिर से अब सुनना बात, फिर नहीं, आप बात सुनना पलट मेरी रहे बात। नहीं, मेरी सुन तो पहले मेरी सुनना नहीं, 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 आप यहाँ आएंगे- पहले बात खुलासा कलाम, मेरी मैं सवाल मेरा, आप ये आप आलिम नहीं है, सबसे कौन? पहले मैं इसलिए आलिम जायज हूँ नहीं नहीं, है बात मैं करना। एक ऑटो ड्राइवर आदमी हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, बात कर रहे हैं। इसलिए फिर किसकी बात? बात तो करूंगा मैं बेशक, आखिर मेरा एक मिनट खामोश कौन करके सुन लीजिए। दूसरा मुतालबा झूठ बोल तो मान लूं मैं, अरे आप बोल रहे हैं खत्म खा रहे हैं, मुसन्नफ वो तो हाँ, कसम खा के बोल रहा हूं मैं, अल्लाह की कसम, वो हदीस वज़ा करता है। खत्म दलील है क्या? हाँ, खत्म दलील है। झूठी कसमें हम तो खाने मुसलमान- वाले हुजूर के जमाने में भी थे आपके जैसे और झूठी मुनाफिक कसमें तो खाने मेरे वाले। लेने थे, आप ही के जैसे मैं झूठी आपको कसमें इल्जाम खाने नहीं, वाले मैं क्या थे। बोला, मैं आपको बनने लगा, आप आप इल्जाम मेरे में आ गए, ऊपर बार-बार लगा रहे हैं, अल्लाह के बंदे बार-बार लगा रहे हैं। नहीं जब हदीस नूर की बात आई, नहीं, चूंकि आप पहली बात है ये, एक काम करिए, सुनिए आप आगे बात बढ़िए। आप बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात नहीं कर रहा हूं मैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आवाज की बात करना चाहिए। हदीस नूर की टॉपिक पे बात करिए। नहीं करना, पहले खबरुल मुस्लिमीन के ऊपर बात आएंगी, उसके बाद आएंगी, बात जब बिगड़नी नहीं बात वहीं से बिगड़ी। हवाला लाइए, आप लाइए, बताइए। पेश करिए, मोबाइल में निकालिए, पेश करिए। जिल नंबर 5 खोलिए आप, जिल जिल नंबर 3, जिल नंबर 3, मैं बोलता हूँ आप जिल लाने के बाद तो खाली बैठा हुआ हूँ मैं कहने ऐसा नहीं रहता, लाखों किताबें रहती है जी, अरे बेशक आप निकालो नहीं, मोबाइल। लाखों तो यहाँ नहीं रहती, क्योंकि अपने रजवी साहब का जो है ना, लियाकत अली रजवी साहब, उनके लिए भी लाखों रखी भी नहीं है, सुबह शाम बैठना था मेरा, मतलब अरे ये यार, बता रहा हूँ, लफ्ज रहता हो, लफ्ज रहता उन्होंने अपने हैदराबाद की बात है, हाँ, हैदराबाद की बात है। अरे कोई मुदाखिल की बात नहीं है, आप गुस्से में मत आइए। अरे आप आ रहे हैं, आप मैं यहाँ- कितना मजबूर हो जा रहे हैं, आप देखिए आप आप बातें बहुत अरे लगने मच्छी वाली का कर रहे हैं, देखिए। जिल नंबर 3, आप बातें सफा लगने नंबर वाली कर रहे हैं, 503, जब आप पे आ रही है तो आप ठीक नहीं लगते। 503, सफा नंबर हो 503, जाएगा, सफा हो नहीं जाएगा। सब हो जाएगा। आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल अरे अरबी मतन है वो, अरबी मतन की बात चल रही है अभी, नहीं नहीं, आप आप ऑनलाइन मोबाइल में देखें, बुक को लेना साहब, जिल नंबर आप 3, बुक सफा करिए। नंबर 500, आप बुक मैं करिए। खूब, मैं लिखी हुई है मेरे पास, बुक कुछ है एक ना, बात बता अरबी रहा मतन दीजिए, नहीं वो आप किताब आप तो दीजिए, आप किताब तो क्या या- आप मुनाजरा करने हैं, नहीं चाहिए, कंडीशन देखते हैं नहीं। मुनाजरे की, कि बात है ही नहीं, मुनाज़े की। आप दीजिए, अब बताइए। रखो, अब वो पूरा सुना सो में पूरे जो बयान है ना दोनों के, जी अच्छी करें, फिर बशीरुद्दीन हैदराबादी दूसरी बात की वो छोड़ दो, उसको सुना छोड़ दो, वो ना कुछ दे दो आप वो। बराए मेहरबानी। हदीस है ना खुली हुई आपने, खुली हुई है, खोल दो। आपने हदीस है ना, वहाँ खोल रहे हो, तो आपका मतन क्यों नहीं नहीं रहा, आपको? वहाँ खोल रहे हो, उसमें क्या आपको है? देखो। उसमें क्या तकलीफ? आपको देर में तकलीफ क्या होगी? किताब में खोल रही है, लिखा हुआ है, खोले, हाँ वो खोल रहे हैं, वो आप देख लिया होगा। सुन लीजिए एक मिनट, आप समझने के लिए आए हैं या बेशक, डिबेट कर समझने के लिए नहीं नहीं कर क्या रहे हैं? बोल रहे डिबेट कर रहे रहे हैं हैं। या समझ रहे हैं? बात एक मिनट आप चुप हो जाए, तीन लोग सवाल आपके किताब साथ देने में क्या गया? सवाल ऐसे करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बात आगे बढ़ गए, आपकी बात करो, आपने कहा ठहरो, सुनो, अब बात सुनो, नहीं, बराए आप- साउंड इल्तिजा है मेरी, बिल्कुल भी नहीं, इल्तिजा है मेरी, सुनिए, बिल्कुल भी नहीं। इल्तिजा है मेरी, जब तक आप- सुनिए, बस मैं सारी को जब सुनिए, तक आप सुनेंगे जरा नहीं खामोश बात, बैठना। तब तक एक बात नहीं सुनी सभा जाएगी, 503 बात नहीं सुनी जाएगी, 503 नहीं सुनी जाएगी, 503, नहीं सुनी जाएगी, 503, पहले मेरी बात का नहीं, जवाब 3 दीजिए। सफा नंबर 503, आप बहस करने आए हैं, आप- आप बहस करने आए हैं कौन? या समझने नहीं के सुनना लिए है, आए हैं? बताए आप बहस करने आए कि समझने के लिए आए हैं? हजरत और ये अंदाज बहस का है, समझने का हजरत नहीं छोड़ है। दीजिए, ये अंदाज बहस का है, समझने का बात नहीं मत है। करिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी हजरत आप खुलिए ना, आप दीजिए, आप नहीं नहीं छोड़ दीजिए, समझने का नहीं है अंदाज। समझने का ही से आपकी नहीं, दलील बताए हम, आप तीन लोग आपके साथ हैं, भाई, उनसे आप कहवा आपसे दीजिए, पूछे, समझने के लिए या बहस कर मुस्लिम रहे ही हैं? पूछे ना, बहस कर मुसलमानों की रहे खबरें हैं, नहीं बहस करने तो की मैंने नहीं क्या कर रहे हैं। बताया, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत तो वही चीज को- मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में लाए, तो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक लाने गए, तो अभी बात करिए, मैं बोला या वही तो चीज मुस्लिम को- के अल्फाज वही में चीज बोला को है। आप जिद तो में- आपने आगे बढ़ के क्या कहा
کہ کتابوں میں سے نکال دیا گیا ہے اور جیسا کہ حدیث میں تو بات وہاں سے آگے بڑھی. دیکھو خبر مسلم کے الفاظ میں دیکھ رہا ہوں یعنی خبر مسلم یہ کنڈیشن میں بات ہوگی. اب وہ کتاب میں اپنا دیکھ رہے کتاب میں یہ کنڈیشن میں بات جھوٹ ہو تو بے شک میں رجوع کر لیں. نہیں جھوٹ نہیں ہے کتاب میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. اچھا ایک نہیں پہلے آپ اپنا آئسینڈ اور کنڈیشن چینج کر کے بات کریے. آپ آرام سے روکنے کا روکیے. اب ہم بھی رکتے آپ کی کوئی ایسی بات ہے تو, مگر آپ ایسی ضد آپ ضد میں آ کے جو جذبات میں آ کے بٹھائے بات کر رہے وقت دیں گے. ایک منٹ خاموش بھائی بلائیے. موضوع پہ آ رہے بات. جی لیکن ایک مرتبہ پھر کہلوانا چاہ رہا ہوں اور تینوں کو آپ کے ساتھ جو ہے ان کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھنے آئے, بحث کرنے نہیں آئے. نہ سمجھنے آئے اور جو اشکالات ہیں دور کرنے آئے. خاموش ہو جائیے. سمجھنے آئے نا یہ, لیکن ابھی تک جو انداز تھا وہ سمجھنے کا ہی انداز. کیا ایسا ہوتا ہے ایسا سمجھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے. نہیں لیکن وہ آپ کا جواب دے دیں. ہاں میں دیتا ہوں, ابھی دیتا ہوں. جواب دے رہے کہ ہاں سمجھنے کا سے آگے جواب دے رہے. جی نہیں بھائی آپ سکون سے ہی میں دے رہا ہوں, سکون سے ہی دے رہا ہوں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں یا سمجھنے کے لیے نہیں. ابھی تو مان لیں گے, ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن دیکھیے انداز سمجھنے والا ہو تو ہم سمجھانے والے انداز میں بات کریں گے جی, ورنہ آپ چیخ رہے ہیں تو ہم بھی چیخیں گے. تو یہ چیزیں ساری چیزیں بگڑ گئی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اسی موضوع پہ. ہمیں حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں اب دیکھیے مہدی پھر آپ اپنے طریقے سے لے کے چلیں گے. میں وہی کہنا سمجھنے کے لیے آیا, میں سمجھانے کی شروع کر. نہیں آپ پڑھے حدیث پڑھ کے بتائیے. آپ نے پوچھا سوال کیا, آپ کو پہلے سوال کیا بولے مسلمانوں کی خبر جواب ہی دے رہے ہیں. آپ کے طریقے پہ تو ہم نہیں چلیں گے. سمجھانا ہوگا تو ہم سمجھائیں گے نا, تو ہم سمجھا لیں گے. سوال کا جواب ہی دینے جا رہے ہیں. پہلے سنیں گے تو سمجھ گئے. آپ پھر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ رکیے, یہاں پہ چلیے میں سن رہا ہوں. آپ پوچھیں گے ہاں سب خاموش رہیے, بتاتا ہوں. کیا مسلمان کی خبر ہے کیا سوال کرے تو ہم اس کا جواب دیا. آپ دیکھیے آپ اس میں کہہ رہا ہوں نا, میں مان لیا اس کو. مان لیا, دکھا دیا پورا, دوسرے نہیں مان لیتے. آپ سب لوگ مان لیے ہے نا. نہیں مطلب آپ ایک بار ہے اس کے اندر صحیح دکھا دیجیے آپ پورا. آپ کو تو یقین ہے نا, نہیں آپ کو یقین نہیں کہ اس میں للمسلمین ہے یا نہیں للمسلمین. میں ڈاؤٹ فل تھا صحیح بھی. اب اگر اس میں ہے بولے تو ہے. پہلے میں ان سے بات کر لیتا ہوں, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اس میں کیا آیا حدیث میں, یعنی للمسلمین, یعنی مسلمین, یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ یعنی کا لفظ حضور کا ہے. یہاں حضور کی بات نہیں چل رہی. حدیث کے اندر مصنف رک جائے حضرت, ایک منٹ میں بتا دوں. سبحان اللہ. ہاں تو حدیث کس کی ہے, وہ حضور کی حدیث. حضور نے فرمایا وہاں پہ ساری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی. تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے, آپ کے طریقے پہ میں نہیں چلوں گا. میں بتا دیا نا کہ آپ سمجھنے کے لیے آئے. میں بات کر رہا ہوں, میں اس کو بھی نکال کے دیکھ لوں گا. جی لیکن جو بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی کہ حضور کی حدیث ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, تو حدیث حضور ہی کی نہ ہوئی, تو پھر کس کی ہوئی؟ حکم دیا وہ یہ بتا رہے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ہو سکتی بات ہے ایک منٹ ابھی کر لیتا وہ کر رہا ہوں. حدیث آقا کی ہے نا, حضور کا حکم دینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چلیے حکم حضور نہیں بولتے ہم خاتم النبیین رحمت للعالمین افضل البشر امام الانبیاء صادق الامین شافی معشر, یہ ہمارا عقیدہ ہے. چلیے ہو گیا, وہی بولتے بس. تو اب اس میں یعنی للمسلمین کا لفظ کیا حضور کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ راویانی حدیث کا بھی ہو سکتا ہے. راویانی حدیث کا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ابھی ڈاؤٹ فل ہو گیا. کون ڈاؤٹ فل نہیں ہے؟ پھر کنفرم بولو آپ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہے, ڈاؤٹ والا لفظ تو اب یہ میں یہ بات نہیں کہا میں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ میں نے یہ کہا اس میں یعنی کے بھی الفاظ ہے. یعنی یا وہ علی بن ابی طالب ہے یا ان کے شاگرد ہے یا سو امام عبدالرزاق تک کوئی نہ کوئی راوی ہے جو اس کے اندر اس کی وضاحت توضیح کرے, بالمعنی بیان کر دیے. سر وہ ان کا مدرج الفاظ ہے, سو راوی کا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہیں ہے بات. اب رہی بات دوسری روایت میں فضالہ بھی نہیں. میں رک جائیے ذرا, خالی آپ ہی بات کرنے کے لیے نہیں ہے, سب کر حضرت میں یہ بات جو چلی ہے نا, بات یہاں پہ یہ چلی, بات یہ نکلی کہ یہاں پہ مسلمان کی خبر توڑنے کا آقا کا حکم یہ کیا, میں یہ سوال کیا تو ہاؤ ہے لفظ ہے اس کے اندر, بولے وہ مسلمان کے لیے بیان کیا انہوں نے. بس بات سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اسی میں روک دیا نا یہ آگے. اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ حضور کا قول نہیں ہے, للمسلمین والا جو لفظ ہے وہ حضور کا نہیں ہے, تو آپ حضور کی مانیں گے یا کسی عالم کی مانیں گے؟ مصنف ابن عبد الرزاق
वो मुसन्निफ कौन है? आलिम ही है। मुहद्दिस थे 211 हिजरी में वफात ठीक है, हुए। तो 211 हिजरी में कोई मुसलमान अगर कह दे तो वो अकीदा बना लेंगे आप उसको? जी उसकी तौजी है, सही मुस्लिम में और एक हदीस है तो किसको मानेंगे? और एक रिवायत है जो उसकी वजाहत हो रही। आप लोग तो हर चीज में लाते कि सही हदीस चाहिए, बुखारी से चाहिए। नहीं, जो भी सही है तो बेशक मानते, बुखारी ही नहीं तो अब हदीस जो में भी हदीस सही मुस्लिमीन का लफ्ज कहाँ आया? किसमें? सही मुस्लिम में भी हदीस है। आप अब सही मुस्लिम बताइए, पहले इस बताते हदीस हैं। की बात कर लीजिए यार। इसमें यानी मुस्लिम के अल्फाज है। देख लीजिए, फिर डिबेट कर रहे हैं। नहीं कर रहे डिबेट डिबेट, कर रहे हैं। नहीं कर रहे डिबेट, बात गलत कर रही। आप चलो डिबेट बोले तो डिबेट कर लेंगे, ये चलो, डिबेट कर लेंगे कल आइए आप कंडीशन इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। कब करेंगे डिबेट? आपको डिबेट करना मना है। आपसे जितनी बात पूछे आपको बोले, आप उसने बोलिए बताया। मैंने बता दिया कि यार, अल्लाह के मैं नबी देखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, किसी राविया ने हदीस है उसकी तौज़ी की है, बिलमाना बयान की है, तो अब हमने- उसकी वजाहत की है, तो सुनो। आप बोले उसके ऊपर अकीदा बनाएंगे क्या? तो बेशक, क्यों पूछिए आप। सही मुस्लिम में फुदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ये है, नाम सुनन अबू दाऊद में है। इल्म नहीं आ जाता। नहीं नहीं, ये बात उसमें भी है रिवायत, अकीदा मुसलमान भी की खबर आपने- तो है उसमें। आप सुन लीजिए, समझने आए हैं तो सुनिए बात। बेशक मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ का अगर वो कौल है लिल मुस्लिमीन, तो आपने कहा अकीदा बना लेंगे। कौन सा? अभी आपने बोला अकीदे की बात नहीं चल रही यहाँ पर, मसाला चल रहा था यहाँ पर, अकीदे का बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। खत्म बात यार, देख कुछ लो, खत्म नहीं अगर बात। आपकी अखिलें खुली हुई हैं क्या? तो सामने देख लीजिए। अभी उन्होंने कहा कि अगर वो उनका भी कौल है, मुहद्दिस का है, तो उसको अकीदा बनाएंगे। अब मैं जब पूछ रहा हूँ हाँ? रिकॉर्डिंग अकीदा होगी, बनी। तो अभी मैं निकाल के अकीदे की बात चल रही हो और तमाम अकीदा की मैंने कहा था, आपने कहा अकीदा बना लेंगे। अकीदा क्यों भाई? वो तो अरे हुक्म की बात यार, चल रही भला में। देखिए, अकीदे की बात नहीं चल रही, मैं- उसकी तौज़ी करे, मैं वजाहत अपनी करे, तौहीन सारावी समझता कह दो, हूँ। मुदर्रज अल्फाज में एक बोला। ऑटो ड्राइवर को बैठा करके दीन की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करा, मैं आपसे बेहतर बता रहा हूँ। मैं बात बेहतर बात आप नहीं घुमाने बता ना, रहा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी स्ट्रेट बात एकदम। कर रहा हूँ, हाँ, सीधी कर रहा हूँ। पढ़ के सुनाओ बोला आपको, सीधी कर रहा हूँ। भाइयों को जानना है कहते आलिम दीन से, आप पढ़ के सुनाइए। आप किताब पढ़ के देंगे, आप ये पढ़ के दिखाओ, ये देंगे आप? कौन? आप सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब तो आपको इल्म, दिया जाएगा भाई ना। जो चीज की आपके इल्म में नहीं है तो मेरा काम है बताना। मेरे जो इल्म में बात है आपके इल्म में होगी, इससे ज्यादा होगी, यार, मेरा ये काम पढ़ नहीं के बताना। बताइए, जो जाइए, पढ़े पढ़ के पढ़े बताइए, पढ़े, आप पढ़ के बताइए। मैंने आप ही पढ़िए, मैं रकमुल हदीस बोल रहा हूँ। किताब बाबुन्वान बोल रहा हूँ, किताब बताओ, जिल्द सफा बताओ। आपकी सलाहियत कितनी है मालूम अरे है? यार, नहीं, नहीं, वो सलाहियतें पूरी वाजे होगी अभी, हाँ, अभी पूरी सलाहियतें वाजे होगी, क्योंकि आपकी भी मेरी भी दोनों की भी वाजे होगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसको और पढ़ के बखूबी बताइए। जानते हैं आप लोग किसकी क्या सलाहियतें हैं। उसको पढ़ फिर वो के सलाहियतें बताने की बात नहीं थी, पढ़ के बता बात दीजिए क्या उसको, होगी, उसको पढ़ बात के बता दीजिए। खबरों की बात चली तो इनसे पूछा गया कि वो क्या मुसलमानों की खबरों की फिर वहाँ पीछे मुताबिक, जाने तो फिर का बात क्या आ गई। फायदा? फिर वहां पर हम बोले कि भाई मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में यानी मुस्लिमीन के अल्फाज की इजाफी है बोल के बताए। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोले आप। वही जो इजाफा है उसके अंदर है, उसके अल्फाज है। पलटने नहीं दूंगा मैं। अरे लफ्ज़ खेलेंगे अपन, आप- या मुनाजरा चल रहा था, लफ्ज़ी खेलेंगे। हाँ, अल्फाज सच खेलना। तुम्हारा ये लफ्ज़ था, पूरी तुम कौम यहाँ जो पर है, अहले हदीस डूबी ना लफ्ज़ों की वजह से, अरे यार, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा की वजह से आगे डूबी सो है कौम ये। पूरा मैं ऐसा पूरा अल्फाज के संगात वजात। मैं- आपने तो इल्जाम लगाया कि भाई ये तो नजदियों का 200 साल पहले, तो ये तो 200 आप- साल नहीं, आप एक- 211 हिजरी में जो आप वफात बात आ गए क्यों बोल रहे इमाम हैं? अब्दुल रज़्ज़ाक़ आप वहाँ पे आ जाओ। आज से लिल मुस्लिमीन का नाम है। 1236 साल पहले के है, तो उनकी किताब में है, तो ये अल्फाज आप यहाँ है, यानी तकलीफ खबर क्या है? मुस्लिमीन। तो ये बढ़ाया कौन? लिल मुस्लिमीन का लफ्ज़ कौन? किसने लाया? वो बताना आपके ज़िम्मा है। आप बताना, आप बताए मैं तो हदीस के अंदर बता आप रहा हूँ। बताए मेरे को, आप बताना मैं मेरे को। बता रहा हूँ ना। भाई आप बताए मेरे को, किताब आप मंगा बताना, लेना। आपके ऊपर है। किताब मंगा लेते ना, ये है ना आपका किताब? कोई किताब नहीं है, मैं फोन में लिखा हुआ है, बोला किताब खोले साहब, किताब नहीं है, किताब खोले साहब, बुक नहीं थी, आप सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बोला बोला मैं। भूखे बोले ना। लिखा हुआ है, बोला मैं लिखा आपको हुआ है, बता रहा हूँ, बोला। लिखा हुआ है, बोले बात यही तो इल्म है। नहीं, किताब है, इल्म ये नहीं होता। अभी किताब है, अरे जरा सीख रहे को आप, किताब सीख है, रहे को आप, मैं आप इसको देख रहा हूँ, नको देखो आप देखता हूँ मैं। किताब में, आप उसमें से पढ़ के बता रहे कोई हैं कोई देख पढ़ के नहीं बताया, रखा मस्जिद नहीं नहीं, पूरा बोल रहे ना किताब में जाए। ये सफा देखो, हर जगह मकतब छपवा ना, वो भी बता दूँ, मैं बताता हूँ। अरे भाइयों जी, सीख रहे को, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सीख रहे को आप, जज्बात में शेख, शेख। अरे आप आ रहे हैं, बराए आप मेहरबानी खाली जज्बात में मिलेंगे। नहीं। अच्छी बात मैं है। ये पूछा, उसमें मुसलमान का जो जिक्र हाँ, आया बता रहा हूँ शेख। वो नबी मेरा पाक काम सल्लल्लाहु बताना। की तरफ से, क्या पूछा? नहीं है बोला ना मैंने। नहीं, आप बात को पलटे, आप है बोले आप। नहीं कौन नहीं, बात गलत। भाई, आप बात सही समझो। मुस्लिम में रिवायत है, उसकी तारीफ में देखिए, बोला खबर जो तोड़ने की हुकूमत है, जो हुक्म। सुनो, जो हुक्म है जी खबर हाँ। तोड़ देने का जो हुक्म हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। फज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु की आप रिवायत थोड़ी है। देर मुंह बंद करेंगे। बोल साहब, अरे मैं इनसे उनसे बात बात करो ना। बैठ के बात बात कर करो। लो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, ये पानी आप भी पी बैठ बैठ के के नहीं, बात नहीं, करो। नहीं बैठने दे रहे हैं मेरे को, इनकी जबान पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको ये बोल रहा हूँ मैं, इनको पहले क्या कहते हैं, हदीस है शरीफ, हमें तो सुन्नत है घर के पीना। हाँ
सुन्नत अरे जान दो, मैं वो बोला बाद ना, में बात 4,500 मसाइल है वो। नहीं है, एक भी नहीं है। सुनिए आप, किताब और सुन्नत से साबित है। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ से लेके आए? बैठा के बीता ही नहीं था बोला, अगर अल्लाह के नबी मैं एक खत्म चीज कीजिए पूछ भी रहा हूँ नहीं आपसे, देता। अरे नहीं बैठना है यार, उनसे बात ही से करना है मेरे को, बात ही नहीं हुई है, खत्म नहीं। मैं आपको ये बात ये बता रहा हूँ भाई, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ ये चीज, हाफिज साहब आपसे ये बात समझना चाह रहा हूँ। वो जो मुस्लिमीन का लफ्ज है, ये आका बोले क्या, मुसलमान की खबर तोड़ो क्या, ये मेरा सवाल है, शुरू से है ना ये सवाल, वो साबित करना है ना। तो इजाफी लफ्ज कोई दूसरे मुसलमान का कैसा आ सकता है, आप पूछो। लेल मुस्लिमीन तो ये बेहतर था। नहीं, वो निकाल रहे हैं ना बहुत, मैं बुला लिया, वापस बुला लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, किसी सहाबी का कौल है नहीं, किसी ताबी का कौल है नहीं, और मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक के जो मुसन्निफ है उनका है वो भी कंफर्म नहीं है। अब 1400 साल बाद किसी ने उसको लिख दिया हो, 1300 साल बाद किसी ने लिल मुस्लिमीन का लफ्ज बढ़ा दिया हो, तो उसको मान लेंगे। कंफर्म इन्होंने भी बताया नहीं, आप बात मत करिएगा, कंफर्म नहीं है आपकी तरफ से, इनको समझाने की बात है, डिबेट नहीं है, तो इनसे डिबेट में नहीं कर रहा हूँ। किसी ने लिखा, किसने लिखा कंफर्म है? आपने कंफर्म किया? नहीं किया ना, कंफर्म तो नहीं किया ना। आपको समझाने की बात करें तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं उनको समझता नहीं कि मैं उनसे बात करने की जरूरत रही है। किसने लिखा लिल मुस्लिमीन का लफ्ज, किसने लिखा कि मुसलमानों की कब्र तोड़ी? इसी पे बात कर रहे हैं, तो बताइए। बात तो आप ले आए लफ्ज, हम तो देखे भी नहीं, आपकी बात हमने मान ली कि हाँ लिखा है वहां पे, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि किसने लिखा, किसने लिखा? आप दलील दे दो, हमें लिखा बता दो कि किसने लिखा है, कंफर्म करके बता दो, तो उस पर बात करेंगे ना यार कि सही लिखा है इन्होंने कि गलत लिखा। और लिल मुस्लिमीन का लफ्ज कहाँ से आया? आप भी हैं यहाँ के, समझ रहे हैं बात को कि वलील मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लफ्ज नहीं है। आपने सिर्फ कब्र के बारे में कहा, मुसलमान का लफ्ज उसमें मुसलमानों की ये नहीं फरमाया, लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया। बाद में किसने वो वजाहत करने के लिए लिख दिया, अब ये किसने लिखा, अब किसको मालूम? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा, या उसके अलावा इस्माइल देहलवी ने लिखा, या सिद्दीक हसन भोपाली ने लिखा, किसने लिखा? कौन कंफर्म कर सकता है? आप कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद लेके आइए, अभी बहुत फिर उसी पे बहस कर लेंगे। हजरत एक खत्म करेंगे, माजूर सबका वक्त इम्पोर्टेंट है, अपनी अपनी लाइफ है, मेरे को भी बोला कि मैं कैसी कंडीशन में हुई। आपकी मेरी बात जो स्टार्ट हुई थी आप साहब, मुफ्ती साहब के जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल किया था, ये सरकार की तरफ से है क्या? सरकार आकाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये लफ्ज है क्या, मुसलमान की खबर को तोड़ो, मौला अली सरकार को हुक्म दिए? ये था ना मेरा सवाल आपसे। ये यहाँ पे सरकार की तरफ से तो ये साबित नहीं हो रहा लिल मुस्लिमीन का लफ्ज, आप समझ रहे हैं बात? बिल्कुल ये आगे होगा, कौन बढ़ा है क्या बढ़ा है, ये दूसरी तहकीक है। हजरत आपके पास किताब सही मुस्लिम है? अब नहीं हजरत, अब नहीं, अपन फिर सही मुस्लिम किताबुल जनाइज, फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ताबई की खबर तोड़वाई और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरों को ऊंची रही तो तोड़ देने का हुक्म दिया बोल के। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम मुताबियत में अली बिन अबी तालिब के लेके आए बतौर हुज्जत, फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुज्जत पकड़ी है, वो रिवायत वाज़ेह है और वो रिवायत इस बात की तौज़ीह कर रही है। इसका क्या कहना है? मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक का वाला, अब आपके जिम्मे आप वो ऐसा कोई बड़े तो आप बताना, अभी जिन्हों के नाम गिनवाए नहीं, आपके जिम्मे आपने जो है ना जिम्मे, मेरे तो जिम्मे बता दिया, किताब में है, आप बताओ। किताब दे जी, अकल है आपको, किताब दे, आपसे ज्यादा है, तो ना आपसे ज्यादा आका की है। रियायत हो ना, आका की तरफ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, गुस्सा कम होता है तो पानी पीजिए। ये जज्बा है, ईमानी जज्बा है। अरे मेरा नहीं है, अल्लाह के बंदे, नबी पे तोहमत लाने आप, जब नबी की बात नहीं आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नबी की बात है, नबी हुक्म सही दिए मुस्लिम मुसलमान खुदा की खुदा खबर तोड़ो, बताइए, मैं बताता हूँ। मुसलमान की खबर तोड़ो बोल के मौला अली को हुक्म दिए बोल के तोहमत बांध रहे हैं नबी के ऊपर, झूठी तोहमत बेशक दिए, कहते हो आज बेशक फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु भाई हदीस बता दिया। आप एक रिवायत दे दो तो गलत होगी, क्योंकि हम फहम सलफ मानने वाले, फहम सलफ के संगत बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में बैठेंगे यानी क्योंकि आप इसको जाने का है, बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं मैं, नहीं है आप अपने गुस्से में आ गए, क्या कर रहे मारो बात समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के पास जवाब देनी होगी, दोनों में भी कातिबिन सबके लिए क़यामत के दिन यही मैशर, यही अल्लाह के पास आप ज्यादा ईमान है हमारा उसमें नहीं है, सही झूठ है अल्लाह और बेशक आप तो मेरे पर मुसलमान ना होने का बोले, सवाल झूठी खत्म खाने वाला बोले मेरे को, सवाल किया, अरे मेरे पर जात पे लगा, खामोश बैठा, खामोश बैठा,
सही झूठ बोले आप नबी के ऊपर नबी पाक आपकी बात है झूठ लगाया भाई, आप हदीस सुनना चाह रहे थे, हजरत आपको सुनाते बोले, सुना नबी पाक पे पढ़ के सुनाओ, हजरत को सुनाओ भाई, सुन के जाना, सुनाओ बोलो भाई, सुनो हजरत को सुनाओ बोलो, सुनाओ बोलो भाई, आप मुंह से बोलो ना, हजरत पढ़ के सुनाओ बोलो, जिस मैं गलत बोल रहा हूँ क्या बताओ। खामोश करा लो आप। मैंने कहा लिल मुस्लिमीन सरकार का लफ्ज़ है क्या? आप इसे किताब बात की बात तो कर रहे हैं। उस किताब में है, मैंने इनकार किया, लिल मुस्लिमीन का लफ्ज़ है, बात दूसरी होगी ना। कंफर्म नहीं वो कर भी रहे। लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है ना भाई, आप बताओ बोलो, पढ़ के सुना है नहीं है, अगर कोई गलत कोई गढ़ दिया तो वो भी बताओ बोलो, दलील के साथ वक्त लेके बताओ। सरकार का है क्या? आज जब सरकार का नहीं है, सही सरकार मुस्लिम की में तरफ है। डालना सही मुस्लिम पे सुनन अबू दाऊद में है, मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक में जो लफ्ज़ है वो उसमें से भी बता तरफ रह के बात कर वो भी बता देखो उसूल है कुछ जी, पहले एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह clear हो जाए। उसूल है। उसूल है ना, तो यहाँ पे साहबी रसूल ने फुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब है सो अपने वहां पर एक ताबई मुसलमान का इंतकाल हो गया, दफना दिए, उनको आगे जिक्र करे, उन्होंने कहा हाँ वही रिवायत पहली है, भैया हमारे भाई गलती करे, आप माज़िरत अली बिन अबी तालिब ने बोले तो उसके अंदर भी अल्फाज करके बताया। गुजारिश है आप दूसरी रिवायत पे मत नहीं जाओ। नहीं नहीं, मैं इसके ऊपर बताया बात कर लो, पहले इस आप पे बात किसी करो। के भी अल्फाज रहे तो 211 हिजरी में बता दिया ना भाई, मैं जो 211 हिजरी में वफात पाए इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह, उनकी किताब में यानी कबीरुल मुस्लिमीन के अल्फाज है, तो आप क्या बोले कि भाई ये तो नजदियां कर दिए, तो कहां से हुआ? इधर का थोड़ा उधर का कब 211 में इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद उनकी किताब में हो, की बात है, झूठ मानने की बात है। आज से 1236 साल पहले के 35-36 साल कबल जो है तो इंतकाल हुआ, तो उनकी किताब में हो, गुमराहियत से बचने हैं। तो आपका है तो अल्फाज अगर वो ज्यादा है वो तो आपका काम है बताना। बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हुजूर का कौल है वो लिल मुस्लिमीन। हाँ सही मुस्लिम में है ना, साहब रसूल खुद फरमा रहे अल्लाह के नबी ने मुसलमानों की खबर, मुसलमान की खबर को तोड़ने की बात बोले, फुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला आपने दिया, कौन? मैंने नहीं दिया था, अब्दुल रज़्ज़ाक मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक का आप औलाद है, अगर मुस्लिम भागना भी नहीं। मंगा लेना था। इन्होंने दिया था। नहीं, इन्हों बोले आते तो अली बिन अबी तालिब नहीं, का, किताब का तो नाम मैंने नहीं। क्या बताया, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के अंदर मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में ये अल्फाज की ज्यादत है बोल के बताया, ये ज्यादत के जगह उसमें है, उसमें बताना है, तो आप भाई ये सब बाता नहीं, आप सुनना चाह रहे थे नाजी, हजरत को बोलो पढ़ के सुनाओ। नहीं, रुक जाओ, कुछ नहीं, आधा घंटे का मैं वक्त देता हूँ, आधा घंटे का वक्त, आप कंडीशन लिख लीजिए अभी आधे घंटे। क्या क्या कंडीशन, जो आप कहेंगे कंडीशन वो लिख लेते हैं, क्या लिखते क्या हमारी तरफ से एक भी कंडीशन नहीं। किस बारे तो यही बात करने की किस कंडीशन। मसले पे? इसी मसले में लिल आप मुस्लिमीन। जिस मसले पे चाहें उस पे आप अपनी अरे condition जो पे बात मसले पे करें। मैं तो बोला इसलिए अकीदे पे पहले बात लेकिन करना बात बोला करने का मैंने। तरीका नबी करीम अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की बात देखिए, आप मुनाजरा करना चाह रहे तो मुनाजरा यहीं से बैठ के करता हूँ, अभी कोई बात नहीं है, कहीं ना जाता हूँ, अब रोज यहीं बैठता हूँ, लेवल वहीं से करता हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, हाँ आलिम नहीं हूँ, इल्म है मेरे को, मदरसे से फारिग तो तहसील नहीं हूँ, हाँ करते नहीं, जरूरी नहीं है, या तो आलिम होना, जरूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है, पहले आप कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है, मेरा काम है बताना, तबादला आप ख्याल समझने आए हैं करना। तब भी कंडीशन लिख के देनी होगी क्या? आधे घंटे में आपने हदीस पढ़ी अभी तक पढ़ के नहीं सुनाई, और आपने जो गढ़ने का इजाफा जो बोल रहे हैं, आप देखिए आपके जिम्मे है वो अल्फाज बताना कि भाई इतने साल के बाद इनो गड़े क्या बोल दिया नो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नजदी करेगा, इस्माइल दली वो तो बिद्दती मानते हैं ना उसको, वो तो उसका बदअकीदा था इस्माइल दली का, अब उससे बारात वो उनको बड़ों से आगे मिलो, गले मिलो उनसे, उससे बारात का ऐलान है हमारा, उसका जो गंदा अकीदा जिसने उन्हें तक़वियतुल ईमान में लिखा, हमारा अकीदा ही नहीं है उसमें, जो तक़वियतुल ईमान में इस्माइल दली ने जो बात लिखी हमारा अकीदा ही नहीं है, बारात का ऐलान करते हैं, बहस कर रहे हो खाली नहीं कर रही, हमारा अकीदा बता रही, जो रसूलुल्लाह से कोई ना हटाए यहाँ पर बाजुबानी, कभी मेरे घर पे आके देखे तो पता चलता। सवाल उतारे आप जवाब कौन सा जवाब, कौन सा सवाल बोले आप एक बार बीच पूछो, मैं जवाब देता हूँ, ये दे दिया जवाब आप, यार सुन मैं कहना पड़ रहा हूँ, लिल मुस्लिमीन सही मुस्लिम का भी बता रहा हूँ, लिल मुस्लिमीन का जो लफ्ज है ये सरकार की तरफ से हाँ वही तो सही मुस्लिम की हदीस से बता रहे हैं। एक मिनट मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक आप लीजिए, खुली हुई है, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर सफा नंबर आप तलाश 503 है, बोलो हवाला आप दे रहे हैं, 503 बोलो ना, तो आप तलाश सही करो, बोलो। आप तलाश लो। निकाल के बोल रहा हूँ मैं, 503 504 पे आप बोलो, खोल लिया, अब खुला हुआ है, आप खोल मैं लिया, खुला हुआ है, और उसको पढ़ के सुनाइए यार। मैं लॉ तो गया था, आराम से बैठो, तो फिर आराम से बैठो आप। आप पढ़ के नहीं सुना रहे थे, आप आराम यार जिम्मेदारी आप, अरे आप है ना जी, आप निकाले हदीस, आप सुनाना है सारी चीजें। इसलिए नहीं, मेहरबानी कह रहा हूं, कीजिए, आप आधे बता- घंटे का वक्त आप ले बैठो, लीजिए आप आप बैठो, आप आप साहब बात- आधे घंटे का वक्त ले लीजिए, कंडीशन लिख के दीजिए।
कंडीशन लिख करके दे दी बात यार कैसे खाली करें? हदीस पढ़ो यार। इसमें नहीं मिले शेख तुम लाए ना, बात तुम पढ़ो, आप पढ़ो, ये आपके तरीके से नहीं चलेंगे, आप पढ़ो, ये आपके तरीके पे नहीं चलेंगे। बैठो 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 भाई दोनों ठहरे तो मैं नहीं ठहर सकता हूँ। और उन आवाज उनकी मेरी नेचुरली आवाज उनकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन तरीका गलत है। सुन किसी की आप आवाज रख सकते हैं, आप आवाज आप पढ़िए ना। आप पढ़ो ना भाई, आप पढ़ो, दावा आप कर रहे ना, पढ़ा नहीं बोला दावा आप कर रहे हैं, निकाल के निकाल इतना है तो निकाल के और ये आप दारू तासीर का नुस्खा है, ये दूसरा नुस्खा है। दारू को तो इस्लामिया का मसला नहीं। अरे वो भी निकाल के देता हूँ, वो भी उसमें से ही बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए थोड़ा, हाफिज साहब चलते रहता है, ये लाइट लो। नहीं 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 डार्क लाइट न खोली, आप लोग लाइट ही लेना होगा, डार्क ही अच्छा कोई भी नहीं लिए, ले भाई 1300 साल में कोई नहीं लिए ले डाल। जी भाई ले लो बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाह रहे हैं काम करना, कौन काम करना ही चाह रहे हैं इसलिए तो देखो बता। अल्फाज तो कहाँ जा रही है, आजाद दी जा रही। एक चीज पे पॉइंट पे बात करते अटक गए, कौन कभी अटके नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस बता दिया हमें, अब वो पढ़ के सुना रहे हैं। फिर सही मुस्लिम भी लाओ बोला, फजाला बिन उबैद की रिवायत बताता हूँ, सुन्नत अबू दाऊद लाइए, उसके अंदर बताता हूँ खोलो आपको। बात मैं इमाम मुस्लिम जिसकी खोलो, इज्जत पकड़े बस वो खोलो, बताता हूँ मैं। आप खोलो। तो समझ गए, अहले इल्म समझ गए। हाँ। इमाम आप मुस्लिम खोलो। रहमुल्लाह फजाला बिन उबैद की दलील रिवायत से हुज्जत अरे, पकड़े, अहले इल्म मुताबिक में खोलो, लेके आए। वो और निकालो। मैं नहीं हूँ, वो तालिब इल्म में हाँ, एक ऑटो ड्राइवर दिख अपना रहा तारुफ होगा, कराया, तारुफ ही करा लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए यहाँ खोलो। नहीं रुकिए अकील भाई, मैं बात कर रहा हूँ। भाई यहाँ लीजिए, यानी मुस्लिम रख दीजिए जी, मैं बात करता हूँ। जी जी तो मैं बता रहा हूँ, वो अलग था, ये अलग नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से निकाल लिया हमने, अल्लाह के शेख फजल मिल गया हो? एक हाँ, बता दिया मिनट, हजरत। शेख पढ़ के सुना देते थे। रुकिए मैं सब कर रहा हूँ यार, आपके तरीके पे मैं नहीं चलूंगा ना, आप समझने आए तो मैं अपने तरीके पे चलूंगा ना। और अगर देखिए आप अपने तरीके पे चलते रहे, हम अपने तरीके पे, जिस तरीके से अभी बेतुके ढंगे से बात हुई है वैसी होती रहेगी। थोड़ी सी खामोशी हुई है तो ये कंफर्म कर लीजिए, समझने के लिए आए हैं बार बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एक उसूल बना लीजिए, अभी एक कंडीशन आप लिख लीजिए या बना लीजिए, जो भी कर लीजिए कि बात किस तरीके से करना है, किस तरीके से बात करना है वो लिख लीजिए, उसके बाद मैं उसको पढ़ देता हूँ। एक साथ चीखने से कोई बात का हल भी नहीं निकलता, और वो चीखेंगे तो फिर मैं तो खामोश नहीं बैठूंगा, आंसर तो देना पड़ेगा। लॉडली आवाज़ अच्छी चीज़ भी नहीं, और जिसका नहीं इल्म रहता ना उसकी तबीयत में खामोशी रहती है। उनको थोड़ी देर खामोश रहने देंगे, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर उनसे बात कर लेता आप करिए जितनी ज़रूरत है उतनी हाँ। करिए आप बस। तो शुरू से आप ही से जवाब आपसे तलब किया गया है ना कि मुसलमानों का बदनाम करेंगे, उसका रिप्लाई सबूत इन्होंने दिया। हाँ? पूरा सबूत क्या होता है कि एक किताब लाइए, मोबाइल ही में निकाल करके दीजिए, उसकी इबारत पढ़िए। ये जिम्मेदारी किसकी, मेरी है या आपकी है? मैं तो कुछ भी वहां पढ़ दूं, अभी आप कैसे मान लेंगे? किताब तो खोल के दे दिए। नहीं देखिए, मैं उस चीज को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, ताकि आप मुझ पे एतमाद कर सकें। ऐसा ना हो कि मैं कुछ पढ़ के बताऊं तो आपको लगे कि अपनी तरफ से बता रहे। अरबी आप समझ लेते हैं? हाँ, आप समझ लेते हैं? आप सब थोड़ी सी आप समझ लेते हैं? नाम तो नहीं मालूम आपका, आप अब्दुल गफ्फार साहब, आप अरबी समझ लेते हैं? समझ लेते अरबी? समथिंग ट्रांसलेट भी समझ लेंगे? शोश खाली यानी खबरुल मुस्लिमीन बोला ना अल्फाज, तो उसका क्या होता वो बता दीजिए आप। नहीं बोल दो ना, ऐसा करके देखिए, गुफ्तगू आप ऐसी नहू है। सर्फ तरकीब करके बताइए, कोई बात नहीं। बलागत, फसाहत, वजाहत के संगत करिए आप, इसीलिए सुनने के लिए हम देखिए, बैठे हैं। बात करने का तरीका एक फिक्स कर लीजिए, जो वही कंडीशन ही में मैं बात कर रहा हूँ आप करिए ना, कि बता। देखिए दलील देना आपके जिम्मे था, आपने दिया, लेकिन पूरी चीज नहीं हो रही है ना। अब ठीक है कि आपने मेरे ऊपर डाल दिया कि आप पढ़ दीजिए, तो मैं आपकी तरफ से पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ूं उसको सही आप कैसे मानेंगे? क्योंकि मेरे पास ना पीडीएफ में ही हमारे क्या नाम है जहांगीर साहब जो बरेलवी है, उन्होंने तर्जुमा करे सर मुसन्नफ का, वो भी हमें पास था। तो अब तर्जुमा उनका कैसे मान लीजिए? कोई बात नहीं, मैं समझे ना बात को। आप सही करे या नहीं करे उनके खिलाफ करने का, यहाँ पर देख के दोनों की तैलीम करने के बोल दो, यानी एक ही जमात के दो फर्क के अलग अलग है बोल के, हाँ, अलग हो रही क्या? उन्होंने बरेलवी है, शायद आप नहीं जानते उनको। हाँ, बरेलवी तर्जुमा। मुतरजिम है जी हाँ, उन्होंने किया मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का तर्जुमा किया उन्होंने, तो उससे मिला लेंगे आप, जी हाँ। कंफर्म हो जाएगा। कौन सा?
अब तो आप कंफर्म हो जाए कि हमने सही पढ़ा है, कौन आप पहले पढ़े तो सही। तो बात करने की देखिए उसको हल कैसे खाली होगा। कितनी देर तक घुमा रहे हैं यार, नहीं हदीस बता। गलत बात अब आप ठहरिए, नहीं उठना, आप नहीं एक्स्ट्रा उठना, नहीं उठना। आप एक्स्ट्रा बात नहीं करिए। मैं एक्स्ट्रा नहीं घुमा रहे हूँ, कितनी देर तक घुमा रहे हैं? बात करने खाली लोग पढ़ने की यार। सुनना चाह रहे हैं खाली हदीस। हम देखिए एक आलिम है, आलिम के तरीके से बात कर रहे हैं। खाली एक बार पढ़ ले तो जो तरीका है समझने समझाने का वो उस पे मैं आ रहा हूँ। इनको तर्जुमा ही नहीं ठीक है, आता। अभी पढ़ रहे हैं। टैली कर लेंगे ना, टैली कर लेंगे आप तो कैसे मान मान लेंगे? जहांगीर साहब का तर्जुमा वो मान लेंगे, आप कैसे मानेंगे? वही तो बात मैं पूछ रहा हूँ, उस पे बात कर लेंगे। लोग मान लेते हैं उनके फॉलोवर्स है, नहीं है कोई किसी का। मैं गूगल ट्रांसलेट कर लेता सुभान अल्लाह। गूगल ट्रांसलेट किसका रहता? हाँ? किसका रहता गूगल ट्रांसलेट? नजदियों का, वहाँ भी बकौल रहता, नजदियों का रहता। इसका भी वो भी ऐसा गूगल तो उस पे नजदियां ही बना गूगल के मुखल्लिद है क्या? गूगल के मुखल्लिद है क्या? नहीं यार तो आप किसी सवाल को करेंगे बनता है, पूरा सवाल हदीस क्यों बनता करेंगे। है? अच्छा इनका भी तर्जुमा हुआ तो इनका भी तर्जुमा कैसा मान लेंगे कहते वो भी मजे खाली हाँ, मजे लेते रहो इसके लिए खाली अरबी मतलब खाली सीखना घूमते रहो पड़ता, खाली। मेहनत करना कितनी पड़ता। देर तक पढ़ना खाली अल्लाह अकबर। अच्छे है भाई, सुभान अल्लाह। आलिम भी जब सोबत में आते ना तो ऐसे ही आता, हाँ, तरीके से बात करना अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह पान के डब्बों पे चबूतरों पे कर लिया तो अरे अलग मैं रहता तो इधर का होटल के तर्जुमा डब्बे अलग पे रहता। रोड पे ठहरे जाहिर रहे। की बात जाहिर की बात हाँ? नहीं लोग पढ़ रहे हजरत, आप आलिम सुनना जब चाह रहे हैं बोलता ना है तो उसके बुरके क्यों अपन से बात करनी आप है। सुनना चाह रहे थे हदीस, हजरत पढ़ के सुनाते बोले हजरत जो भी तर्जुमा करने दो आप सुन लो। अरबी पढ़ते आपको, मेरे को अपन आलिम नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं है मेरा ज्यादा इल्म है। अपन उन्होंने जो भी तर्जुमा करे उसको उन्होंने लिख देते ना, तो अपन लिख लो, आप अपनी जुबान में लिख लो, मैं मेरी जुबान में लिख लो, तो जो आती मेरे को लिख लेंगे अपन, तर्जुमे का मुतालबा कर लेंगे। क्या हमारे आलिम भी वही तर्जुमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इनके आलिम भी सही बोल रहे तो सही तर्जुमा है ना, कौन सा तो यही मसला यही चल रहा है। नहीं चल रहा भाई। अरबी मतलब नहीं चाहती। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान के तर्जुमाओं में छोड़िए आप, सुभान अल्लाह। वहाँ से हदीसों का तो क्या हाल हो गया? क्या हलवाऊंगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये जो पीडीएफ है इसी को मान लेंगे। हाँ देखो अब खाली ये मंतीखा चलते हैं तो बात करना हार्ड कॉपी लाओ ना सर, जारी ले जाए हार्ड कॉपी लेगा, हार्ड कॉपी लेगा, हार्ड कॉपी लेगा। जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता उसको जाहिल बना देता। हाँ भाई पीडीएफ आप बताएं, आप किताब लाने गए नहीं तो मुस्तनद अब्दुल रज़्ज़ाक आप लाके बता दो जिल नंबर इतने 3। तरीके से आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आप फिरा रहे क्यों यार, फिर खाली हदीस पढ़ना है ना। आप जो नुस्खा बोले ये उस नुस्खे जाहिल से वाली निकाल के बात- बताया फट जाहिल वाली बात है कि से नहीं? निकाल के बता दिया। जाहिल वाली बात। दारुल कासिल से मतबुआ नुस्खा है उसमें से भी निकाल के बता दिया। हार्ड कॉपी बता दो दीजिए। चार्ट आप गलत है बोल के बताओ। सदर मुदरिस आप बताना, आप बताना। वहाँ है उनका आगे हाँ, गली में यहाँ नहीं रहते सदर सोहेल मुदरिस। रजा साहब है, यार, मालूम है। सुनो, ज्यादा बात नहीं करेंगे आप। कौन है आप मालूम खाली है, बोला टॉपिक सोहेल पे रजा बात साहब है, बोला आप मैं। बात ही मत करिए। सदर मुदरिस वो तो उन्होंने उन्हीं जानते के हो। गलत हो गया। उन्होंने होते उन्होंने सदर मुदरिस नहीं होते आगे। हाँ उन्होंने आप लोगों की तसल्ली के लिए गलत है ये हाँ, हदीस यहाँ पे हाँ। लिखी है उसको मैं पढ़ देता वो हूँ। चेयरमैन है आप ये सुन लो भाई, अब सुन लो। उनका मालूम होगा भाई, चेयरमैन है का तो एक एक सवाल जो मैं कर रहा हूँ घुमाना एक भी नहीं है। ये रिवायत है। सही मुस्लिम में पहली जो रिवायत बोलाने में किताबुल जनाइज में बाप यहाँ पर लिखा है खबरों को बराबर करने का हुक्म है। फुजाला बिन उबैद की पहली रिवायत, उसके बाद इमाम मुस्लिम। मैं आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, हजरत की आप मजलिस में हैं कि मैं क्या बोला, मैं जो बात बोला था ना, मेरा काम है फर्ज बताना कि इमाम मुस्लिम पहली दलील हुज्जत किससे पकड़े, अहले इल्म बखूबी जानते हैं कि इमाम मुस्लिम जो पहली रिवायत लाते हैं उससे हुज्जत पकड़ते हैं, उसके बाद उसकी मुताबियत और शुवायद लिखाते हैं। तो मुताबियत में अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला की लिखा है, पहले किसके लिखा है, फुजाला बिन उबैद रजी अल्लाह तआला की रिवायत लिखा है। तो वो रिवायत पहली थी, सेकंड दूसरी ये थी इसके अंदर। तो मैंने जो कहा मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में ये अल्फाज है, मुझे बताया पर फुजाला बिन उबैद के अंदर रिवायत के अंदर मुसलमान साहब ताबई है सो इंतकाल करके उनको दफनाने के बाद इन्होंने कहा खबर उसकी मस्जिदों ने बना दिए। कौन बोल रहे हैं, साहिब रसूल बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी हमें हुक्म दिए। तो ये खबर मुसलमानों की खबरों के मुताबिक यही पढ़ना है ना या और कुछ पढ़ना है? आप ही के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप जो कहिए उसका मैं पढ़ता हूँ। ना हदीस पूरी पढ़िए, सनद के साथ पढ़िए, फिर आप इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करके हमारे इल्म में बाद में बताइए। हम लोग आते फिर कि भाई ये अल्फाज जो है ना, हाँ, ये किताब के अंदर गर्दी है, फला फला जो बड़े बड़े नाम बोले नहीं, या उन्होंने जो इजाफा की बोले ना, बात मैंने की भाई इजाफा बोले आप भाई, बोले ना भाई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी में डाला है ये आपके ऊपर है जिम्मे। आप बोले सवाल किया है, मैंने तो सवाल किताब किया है, खोल के बता क्या- दी। क्या- सवाल क्यों करे भाई आप, सवाल आपको इस किया है। किताब के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप बताओ हमको ये हदीस है। मखतूतात से बताओ यार, आप की चुप रहो यार। अल्फाज उसके अंदर फुला ने इजाफे किए बोले। चुप रहो यार आप।
बात आप अखलाक इल्जाम आदाब लगाते में हो, रहना, फिर सुनते नहीं हो। अखलाक आदाब में गालिबन हमें तो उम्र में छोटे नहीं हैं कर रहे हो। जनाब, मैं तो उम्र में छोटे आप 1401 हिजरी में पैदा हुआ मैं, आप इल्म में 1401 हिजरी में। अरे कितना हूँ अल्लाह बेहतर जानता। बस यार एक भाई सनद के लेवल में होता सनद नहीं मेरे अली नहीं, अखलाक से बात करो। मुफ्ती साहब, ये बंदा सिर्फ इल्जाम लगा रहा मुफ्ती है। साहब, कुमार है, ये मुफ्ती लफ्ज़ साहब। कौन बोला? बेअदबी का लफ्ज़ है कि नहीं? कुमार है। नहीं, हैदराबाद में अरे बोलना वहाँ पर किराक हो जाते बन देख के उठा के पढ़ेंगे देखे हमारी नस्ल में यहाँ पर गाली है हमारे पास। हैदराबाद गया, हैदराबाद के नहीं है। क्यों बता रहे? अरे हम हैदराबाद में है, नहीं सुनते। आओ बिल्ला ने ठहरो, आओ बिल्ला ने है ना, अपन मस्जिद में हैं। सर चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मस्जिद का कफारा पढ़िए।